I'm Ashutosh and I'm 18 years old. I'm from Varanasi. And this was my second attempt in which I got recommended from 11 SSB Allahabad. So right now I've cleared my 12th and waiting to join the academy. And I'm quite excited right now. You are excited, but believe me, when you join, this excitement will not last long. Very short-lived excitement. तू चलता चल तू चलता चल तू चलता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू लड़ता चल तू लड़ता चल तू लड़ता चल जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सकें। Welcome Ashutosh to our channel, The Fauji Show, and congratulations on getting recommended, and also for the merit list AIR 138. So uh, I hope you get India squad in. Thank you so much, Vaya. So tell your basic intro, who you are to our viewers. So I'm Ashutosh and I'm 18 years old. I'm from Varanasi. And this was my second attempt in which I got recommended from 11 SSB Allahabad. So right now I've cleared my 12th and waiting to join the academy. And I'm quite excited right now. You are excited, but believe me, when you join, this excitement will not last long. Very short-lived excitement. So you got conferenced out once, and was your second attempt. So how was the journey from from conference out in Bhopal, standing on that railway station, thinking कि यार अगली बार आऊँगा तो फाड़ दूंगा साला. तो what was that journey like? How did you go back, introspect, come back stronger, get recommended from Allahabad, which is allegedly known as the rejection center? वैसे वो rejection center है नहीं, more like acceptance center. तो तो how was your experience? So my first SSB was at Bhopal, and this was in this year only. फरवरी का महीना था. So I was very confident before going for the SSB because काफी अच्छे से सारी तैयारी की हुई थी, and meanwhile I was also preparing for my JEE examination. तो उस पे ज्यादा फोकस ना करके I was quite much focused on my SSB preparation, like personality development के लिए physical चीजों को maintain करना और वो current affairs उन सब पे focus करना. So I was very confident of going in and then getting selected. But then जब मेरा result आया and I was conferenced out, only 3 of all the 30 guys that were there screened in वो recommend हुए थे. So it was quite heartbreaking. घर आने के बाद थोड़े दिनों तक दिमाग में वही सारी चीजें चलती रही कि what could have gone wrong, because in my mind I had performed all the tasks in a very efficient manner and I was thinking कि सब कुछ अच्छा ही हुआ है. I have not gone wrong anywhere. तो वो एक चीज थी दिमाग में जो मतलब काफी पिंच करती थी कि आखिर कहाँ पे गलती हो गई जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हुआ. बट शुरू के टाइम में वो चीजें सोचने में भी थोड़ा सा मन को अच्छा नहीं लगता था. तो उस टाइम पे मेरे जो एग्जाम चल रहे थे मैंने उन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया. बोर्ड के एग्जामिनेशन भी पास थे जो कि अल्टीमेटली कैंसिल हो गए. तो वो सारी चीजों के प्रिपरेशन में मैं लग गया. बट टाइम एंड वाइल मैंने बाद में फिर धीरे धीरे रियलाइज किया कि वेयर कुड आई हैव गॉन रॉन्ग. एंड मैंने ये एनालाइज किया कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू के दौरान आई वॉज क्वाइट बड़ बोलापन जिसको बोलते हैं कि मतलब जितना जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोल देना, ये चीजें होती हैं. और कई बार हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के, हम छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं. तो मैंने वो सारी चीजें अपने अंदर एनालाइज की एंड देन उन्हीं सारी चीजों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आया एंड देन रिकमेंड हो गया. Great. Amazing journey, because
तो जैसे अगर कोई कैंडिडेट है एंड ही ही अटेम्प्ट्स एन एसएसबी एंड ही थिंक्स कि यार आई कांट अंडरस्टैंड मैं कहाँ गलत हुआ हूँ, वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग, ऐसे पक बहुत लोग होते हैं, जनरली ऐसे ही लोग होते हैं कि दे आर नॉट एबल टू इंट्रोस्पेक्ट. सो हाउ शुड गो अबाउट दैट? वो जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, हाउ वुड यू सजेस्ट टू डू अगर यू हैव टू सजेस्ट इट टू समवन? सो भैया सबसे पहले तो इंसान को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि मैं 100% प्रिपेयर्ड था एंड सब कुछ सही हुआ. एक बिल्कुल फ्रेश रीस्टार्ट करनी चाहिए दिमाग से, ये सोचते हुए कि इट्स लाइक आई एम अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्विंग माई सेल्फ, माई परफॉर्मेंस एज दी एसएसबी. और फिर अगर इस तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस को एसएसबी में देखेंगे तो जरूर से कहीं ना कहीं जहाँ कहीं भी लूप होल्स रह गए हैं वो हमें दिखने को मिलेंगे. और इसी तरीके से मैंने भी अपना इंट्रोस्पेक्शन किया. एज अ थर्ड पर्सन मैंने अपने परफॉर्मेंस को एसएसबी में जो भी मेरी परफॉर्मेंस रही थी उसको मैंने ऑब्जर्व किया. और तब मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ पे आई हैड गॉन रॉन्ग. और कई जगह पे जैसे एक दो एग्जांपल्स मैं बताऊं कि इंटरव्यू के दौरान क्या होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो यू शुड कॉन्फिडेंटली से कि सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बट उस टाइम पे दिमाग में ये रहता है कि नहीं मुझे आंसर करना ही करना है, कुछ भी बोलना ही बोलना है. एंड इन दैट पर्टिकुलर वे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे इंटरव्यूअर के जो मैंने गलती से गलत आंसर कर दिए थे. एंड ये चीजें मैंने बाद में रियलाइज की कि मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था. इफ आई डोंट नो द आंसर आई शुड हैव सेड इट. और यस. इस तरह की कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं तो इसको अगर आप एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करते हैं ये सोचते हुए कि मैं 100% प्रिपेयर्ड नहीं था एंड दैट इज व्हाई आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड, तो डेफिनेटली आपको अपनी गलतियां दिखेंगी और इम्प्रूव करने के जो भी चांसेस हैं वो आप खोज पाएंगे. ओके. सो जैसे हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर एसएसबी? डिड यू टेक एनी कोचिंग, या अगर कोचिंग नहीं ली थी तो व्हाट वाज द सेल्फ प्रिपरेशन मेथड यू डिड एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर? So Bhaiya, after the written examinations were already just completed, I started preparing on my own, purchased some OIR books, and I was solving all that books. And meanwhile, I also searched on internet about different coachings, and I got to know that there is one coaching with the name AFPA, Armed Forces Okay. Preparatory Academy, which is situated in Nagpur, and it is run by Yachter Commander and Kenneth Rajan sir. तो वो उस कोचिंग के बारे में मैंने काफी सुना हुआ था एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने उसके बारे में रिव्यूज दिए एंड आई थॉट कि ये एक अच्छी कोचिंग है. सो आई वेंट देयर लास्ट ईयर इन दिसंबर एंड देयर वाज दिस 2 week एसएसबी कोर्स. सो व्हेन मैंने वो ज्वाइन किया था एंड आई गॉट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ टू अप्रोच द डिफरेंट टास्क दैट आर देयर एट द एसएसबी. Okay. तो काफी अच्छे से वहाँ पे चीजें हुई, प्रैक्टिस भी अच्छी हुई. तो इस तरीके से वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन किया था एंड कोचिंग से आने के बाद अपने से जो चीजें वहाँ पे सीखी थी उनको एक कंटिन्यूएशन में रखा. और फिर एट द एंड अभी जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग. तो Okay. जो मेरा फ्रेंड सर्कल था उसमें भी बहुत सारे बंदे थे जो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका भी रिटर्न क्लियर हो गया. तो वी मेड एन ऑनलाइन ग्रुप क्योंकि कोविड के टाइम में सबसे ऐसे फिजिकली मिलना उतना वो मतलब कि हो नहीं पाता. तो Yes. इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया और वहां पर हम डेली ही ऑनलाइन मीटिंग्स करते थे जिसमें कभी हम पीपीडीटी के बारे में तो कभी जीटी के बारे में, इस तरीके Ashutosh, से डिफरेंट डिफरेंट जो भी I होते think हैं. I had come on that group once. हाँ Yeah. एग्जैक्टली भैया, दैट इज हाउ आई गॉट टू नो यू. अच्छा. बट मैंने उस दिन एसएसबी के रिगार्डिंग कोई ध्यान नहीं दिया था, मैंने एकेडमी के रिगार्डिंग ऐसी एमएल दिया था थोड़ा. तो एग्जैक्टली भैया, आई रिमेम्बर दैट डे. ओके. अच्छा यार, ग्रेट, नाइस टू सी. और अच्छा, आई हैड यू वर इन दैट डिस्कशन व्हिच वी हैड बिफोर रिकमेंडेशन, है ना? यस हाँ भैया बिल्कुल. नाइस टू बी इन समवंस जर्नी, स्मॉल पार्ट बट स्टिल ग्रेट. तो यार आई वाज एक्चुअली कमिंग ऑन दैट पॉइंट. क्या पॉइंट क्या है? यही मतलब बताने के लिए कि जो है रिकमेंडेशन से पहले ही वी हैव जस्ट मेट वन ऑन दैट ऑनलाइन ग्रुप जहाँ पे आपने भी काफी सारे इंसाइट्स दिए एकेडमी के बारे में जो थोड़े से इंटरेस्टिंग होते हैं. मतलब इस तरह की प्रिपरेशन के दौरान अगर ऐसे कुछ इंसाइट्स मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है. इट इज काइंड ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अस. Yeah, I'm glad it helped. अच्छा यार, AFPA का इस बार रिजल्ट has been good, very good in fact. So what is their process like? If someone you have to recommend it. This is not a promotion. I am not doing a promotion over it, but I am just inquisitive कि how come they are getting 50-60 recommendations? What is their for what do you think works for them?
भैया as much as I have observed, like मैंने भी वहाँ पे 14 दिन बिताए थे, तो जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, हालांकि मैंने कोई और कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, बट वट एवर आई हैड ऑब्जर्व्ड इज दैट कि वहाँ पे कोई ऐसे मगअप करने वाली चीजें वो लोग नहीं सिखाते हैं. इट्स अ मोर काइंड ऑफ कि आपको वो ये सिखाएंगे कि हाउ यू हैव टू अप्रोच द टास्क. आपकी Okay. पर्सनैलिटी में आपको चेंज कैसे लाना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. और पर्सनैलिटी होती भी ऐसी चीज है जिसको मतलब कि आप 1-2 महीने में चेंज नहीं कर सकते. तो Okay. आई रिमेम्बर वन सेइंग लाइक कि आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन, एसएसबी के लिए प्रिपरेशन आप तब स्टार्ट करते हो जब आप ये डिसाइड करते हो कि आपको एनडीए ज्वाइन करना है, तब नहीं जब आपका एसएसबी के लिए कॉल अप लेटर आता है. तो ये जो पर्सनैलिटी वाली थिंग है, इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है 2 हफ्ते के अंदर. तो डेफिनेटली एक आपको अप्रोच की किस तरीके से आप टास्क को अप्रोच कर सकते हैं, एंड प्लस वहाँ पे आपके लाइक माइंडेड पीपल आते हैं, तो उनके साथ जब आप मिलकर प्रैक्टिस करते हो, तो हाँ. वो चीज आपको काफी हेल्प करती है. एंड देन वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को सिखाने के लिए अलग अलग कोचेज हैं जो कि आपको पर्सनली भी एनालाइज करते हैं आपकी चीजों को, एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स वो आपको एक रिपोर्ट भी देते हैं रिगार्डिंग ऑफ वट एवर दे हैव ऑब्जर्व्ड इन यू, और क्या नेसेसरली चेंजेस आपको लानी चाहिए in order to just improve your personality, not to get selected but to improve your personality, which Okay. ultimately will help you in getting selected in SSB. So I Okay. think this is a mantra which they follow, and that's why they give so many recommendations. Okay, great. तो how did you prepare your SD and blank story? और पहले से प्रिपेयर करके गया था या वहाँ पे जाके जस्ट ऑन द स्पॉट लिखा? और अगर पहले से किया था प्रिपेयर तो व्हाट वाज, मतलब थोड़ा थीम बता दे उसका बेसिक. भैया मैंने तो पहले से ही प्रिपेयर किया था ब्लैंक स्टोरी एंड एसडी बोथ, बिकॉज ये ऐसी चीजें होती हैं जो वहां पे जाके ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है. अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जाते हो तो भी ये आपको बेनिफिट ही करता है, आपके पास थोड़ा टाइम बचता है अदर चीजों के लिए. अगर मान लीजिए कोई आपकी स्टोरी बच गई है, रह गई है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम बच जाता है. तो मेरी जो ब्लैंक स्टोरी थी, इट वाज अराउंड अ फुटबॉल कंपटीशन, जहाँ पे एक टीम का कैप्टन रहता है जो अपनी टीम को लीड करता है एक फुटबॉल कंपटीशन में. तो इसी के अराउंड मेरी थीम थी, एंड देन फाइनली मेहनत करके समहाउ वो कंपटीशन जीत जाते हैं. ओके. तो इसी थीम के अराउंड मैंने अपनी ब्लैंक स्टोरी प्रिपेयर की थी. एंड द सेम विथ एसडी ऑल्सो. एसडी भी मैंने अपने बारे में जो भी पेरेंट्स के ओपिनियन है, टीचर्स के ओपिनियन है, वो जो 5 सब थीम्स रहते हैं, लाइक फ्रेंड्स के ओपिनियन, मेरा खुद का ओपिनियन, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई हैव टू बिकम. तो इन 5 सब टॉपिक्स के ऊपर जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको मैंने दिमाग में रखा हुआ था कि मुझे क्या क्या चीजें लिखनी, एंड देन वहां पर जाके उसे एक पैराग्राफ का फॉर्म दे दिया. तो इस तरीके से मैंने अपनी ब्लैंक स्टोरी और एसडी प्रिपेयर की थी. ओके. सो जैसे जीडी है, लेक्चरेट है, तो उसमें काफ़ी नर्वसनेस होती है बच्चों को, तो वो कैसे इम्प्रूव किया जाए? व्हाट डू यू थिंक कि लेक्चरेट को कैसे टैकल किया जाए और कैसे इम्प्रूव किया जाए? भैया एक्चुअली मैं बताऊं तो ये एक चीज है जो काफी लोग मतलब कि पूछते हैं कि इस तरीके से कैसे इसको इम्प्रूव करें. मतलब ये काइंड ऑफ स्टेज फियर भी होता है. अगर कई बार आपने कभी स्कूल में कभी ट्राई नहीं किया, कभी स्टेज पे जाकर के आप कुछ बोला नहीं आपने, तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्टेज फ्राइट रहता है पब्लिक को एड्रेस करने का. तो आई आई थिंक कि इसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो आपके पास एक थोड़ा नॉलेज फैक्टर होना चाहिए. यू शुड फॉलो द करंट अफेयर्स लाइक इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. आप अगर पास्ट 3-4 मंथ के भी करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, एंड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन योर माइंड, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आपको 3 मिनट बोलने को कहा जाए, लाइक, तो आप बोल सकते हैं. अगर आपको किसी ग्रुप डिस्कशन के बीच में बैठाया जाए, तो आप भी बोल सकते हैं. Yes. तो इसलिए वहां पे कॉन्फिडेंस वाली चीज बिल्ड होती है. एंड देन दूसरी चीज जो होती है स्पीकिंग के लिए, आप फंबल ना करें, आपकी फ्लुएंट स्पीकिंग हो. सो फॉर दैट आई थिंक कि प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लाइक हम भी जो है अपने प्रिपरेशन के दौरान हमने कई बार इस तरह के सेशंस कंडक्ट किए थे जहाँ पे हम लेक्चर 8 और जीडी सारी चीजें करते थे. तो वहां पर लगातार बोलने से आपकी फ्लुएंसी डेवलप होती है, एंड दिस अल्टीमेटली हेल्प्स यू इन एसएसबी. ओके, ऑन दैट ग्रुप ओनली जिस पे मैं आया था एक बार. हाँ एग्जैक्टली, वे ऑन दैट ग्रुप आल्सो. ओके. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं मतलब पहले भी आई हैव बीन इनटू ओरिएंट एंड ऑल दैट, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये एक एडवांटेज वाला फैक्टर था ओके. कि पहले से भी मैं इन चीजों में मतलब जुड़ा हुआ था, डिबेटिंग एंड अदर थिंग्स. ओके. तो मुझे उतनी पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इफ समवन हैज टू प्रिपेयर देन ये चीजें फॉलो करके दे कैन प्रिपेयर. ओके, ग्रेट. एंड जैसे
इंटरव्यूइंग आईओ में जब ही विल टेक योर इंटरव्यू, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर जो एक सेट है जो वो पूछेगा ही पूछेगा, जैसे टीचर्स वाला, पेरेंट्स का, एकेडमिक अचीवमेंट्स, हॉबीज, गेम्स। तो डिड यू प्री प्रिपेयर योर सेल्फ कि मतलब मैं पहले से ही ये सेट ऑफ क्वेश्चन जो नोन है ये तो मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा ही? भैया, मैंने भी मतलब जैसे एक दिमाग में आइडिया रहता है कि जो है इंटरव्यू के पास अगर मैं जाता हूँ और वो मेरे उसके बाद मेरा ऑलरेडी पीआईक्यू फॉर्म सबमिट है, तो हाँ उसमें मैंने कुछ डिटेल्स भरी हैं, उसके अराउंड तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हाँ तो इसलिए अपने अपने बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, कि आपके टीचर्स आपके बारे में कैसा सोचते हैं, या अगर स्कूल में आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद था तो वो कौन से टीचर पढ़ाते थे और उनका क्या ओपिनियन था आपके बारे में। एंड देन आपकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपके पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है आपके बारे में, वो क्या करते हैं। इस तरह की कुछ जो बेसिक सी चीजें हैं, ये इंसान को हमेशा अपने बारे में पता होनी चाहिए। तो एसएसबी से पहले मैंने भी इन चीजों को एक बार ब्रशअप किया था, सारी चीजें ऐसे दिमाग में बैठ करके एक दिन की, हाँ ये चीजें ऐसे हैं, जो है स्कूल में मेरा ये सब्जेक्ट फेवरेट था, मेरी ये पर्टिकुलर हॉबीज हैं, ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट हैं। लाइक ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को पता तो होती हैं, बट क्योंकि इंसान कभी इन चीजों के बारे में सोचता नहीं है, तो अगर वो एकदम से के अंदर जाता है तो थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है कि अच्छा अभी मैं कौन सी हॉबी बताऊं, कौन सी इंटरेस्ट बता रहा है, सोच के जा रहा है दिमाग में कि हाँ ये चीजें हैं, मेरे बारे में मुझे पता है, तो वहां पे इंटरव्यू में डेफिनेटली उसको हेल्प करेगा। ओके। सो कॉन्फ्रेंस फिर कितनी देर चला तेरा? कॉन्फ्रेंस में आई थिंक 1 से 2 मिनट का टाइम लगा था। 1 से 2 मिनट मैंने बाहर वेट किया, अंदर अंदर जाकर भी 1 से 2 मिनट ही लगा। ओके, सो बस हाय हेलो थैंक यू है? हाँ एग्जैक्टली, हाय हेलो थैंक यू था। उन्होंने एक दो क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे कि पिछले एसएसबी से और इस एसएसबी के बीच में क्या ऐसा डिफरेंस रहा कि यू गॉट रिकमेंडेड दिस टाइम। अच्छा, तो इस तरह के एक पहले दो ही पूछ क्वेश्चन लिया उन्होंने था? पूछे थे। हाँ, अंदर जाने के बाद थोड़ा हाल चाल लेने के बाद ये उनका लास्ट क्वेश्चन था मुझसे कॉन्फ्रेंस में कि लास्ट टाइम यू वर इन भोपाल एंड यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट एंड देन दिस टाइम यू आर इन इलाहाबाद, यू गॉट रिकमेंडेड, सो व्हाट डिफरेंस हैड यू मेड इन दीस 6 or 7 months तो तेरा क्या which made रिएक्शन था? which just got you recommended। मेरा रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल सा था, बिकॉज मैंने इस क्वेश्चन को एक बार इंटरव्यू में भी आंसर किया था। वहां पे देयर वाज दिस वाइस प्रेसिडेंट, वाज अ पंजाबी एंड ही वाज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट गाय, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो इंटरव्यू कंडक्ट किया था उन्होंने मेरा, हंसते हंसते पूरा इंटरव्यू कंडक्ट हो गया था। तो उन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, सो वो आंसर मेरे दिमाग में ऑलरेडी था उस टाइम पे। तो मैंने इंटरव्यू के दौरान जो उनको आंसर दिया था कि मैंने किस तरीके से अपने अंदर जो भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है, जो भी फॉल्ट्स रह गए थे पहले एसएसबी के दौरान, उसको मैंने ठीक किया है। आई फोकस मोर ऑन इम्प्रूविंग माय पर्सनालिटी rather than learning how to just accomplish the task। तो इस तरीके से मैंने अपने अंदर चेंज लाया, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच मेड मी रिकमेंडेड। ओके ग्रेट। सो व्हाट ऑल हॉबीज डू यू हैव? अगर जैसे कोई बच्चा है, ही इज नॉट इनटू स्पोर्ट्स मच and he is not, because you have told me कि you played only kho, you're not much into games, so how should he go about it? Because he will ask, the interviewing officer will ask you. डेफिनेटली भैया, हॉबीज एंड इंटरेस्ट कुछ ऐसी चीजें हैं, बिकॉज लाइक स्पोर्ट्स तो एक ऐसा पार्ट है जो एनडीए में अगर कोई इंसान जाना चाहता है या डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता है, तो फिजिकल तो काफी अच्छा होना ही चाहिए, एंड ही शुड बी अ स्पोर्ट्स लवर। हाँ बट इवन इफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पढ़ाई के दौरान बहुत ज्यादा इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते, yes तो आई मस्ट सजेस्ट देम कि थोड़ा बहुत आपको स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। एक दो अगर गेम्स आप खेल सकते हैं लाइक बैडमिंटन एंड फुटबॉल या क्रिकेट, तो आपको जरूर वो खेलना चाहिए। ये चीज अगर आप अपने अंदर इनकलकेट करते हैं तो ये आपकी फिजिकल जो है हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, एंड आपको बाद में भी चीजें हेल्प करेंगी। तो लाइक खो खो एक ऐसा स्पोर्ट है, मतलब जिसमें आपकी पूरी की पूरी बॉडी ही अच्छे से इन्वॉल्व रहती है। तो वो हमने लगभग 5 से 6 साल स्कूल में खेला था, अच्छा तो काफी अच्छी फिटनेस उससे मेंटेन हो गई थी। एंड कोइंसिडेंटली जो मेरा इंटरव्यूअर था वहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट, ही वाज आल्सो खो खो प्लेयर। तो अच्छा जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो वो एक किसी नोट पे स्टार्ट हुआ, ही रेड दैट थिंग कि मेरी हॉबी खो खो खेलना है, तो ही जस्ट स्टार्टेड ऑन ऑन दैट नोट। एंड शुरू के 10-15 मिनट उन्होंने खो खो के बारे में सारी की सारी बातें की। Okay. उन्होंने टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस किया, और हर एक माइन्यूट डिटेल जो वो ले सकते थे मुझसे इस गेम के बारे में, वो उन्होंने लेने की कोशिश की।
तो ये एक चीज है। तो इस तरीके से मतलब स्पोर्ट्स को इंसान को अपने लाइफ में एक थोड़ा सा महत्व देना ही चाहिए। ग्रेट। और जैसे जीटीओ में वहाँ पे काफ़ी ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, जैसे पीजीटी, एचजीटी। तो स्ट्रक्चर्स को अगर किसी को घर से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ही कांट गो टू कोचिंग, तो हाउ कैन ही डू इट? आई शुड सजेस्ट भैया कि बहुत सारे अभी यूट्यूब के ऊपर भी कई सारी एकेडमीज हैं जो इस पर मतलब वीडियोस बनाती है। तो ओके। अगर उन वीडियोस को एक बारी कोई देखता है तो उसको एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के ऑब्स्टिकल्स वहां पर आते हैं एंड किस तरीके से हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, जो है उनको क्रॉस करने के लिए। आपके पास फट्टा और बल्ली, रस्सी, ये सारी चीजें होती हैं एज हेल्पिंग मटेरियल। तो ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स है जो आप घर पे आसानी से आपको मिल सकते हैं। तो आप उनका यूज करके अपने घर पे ही बहुत सारे, जैसे दीवार के बीच में या कुछ रेलिंग्स है उनके बीच में, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पर अगर आप देखते हैं कि किस तरीके के वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो उससे भी आइडिया एक अच्छा खासा लग जाता है कि क्या आपको वहाँ पे जाकर करना है। तो इस तरीके से आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। एंड हैव यू अटेंडेड टीएसएसएसबी? नो नहीं भैया, मैंने अप्लाई तो किया था बट सिंस आई गॉट ऑलरेडी रिकमेंडेड इन एनडीए तो मैं गया नहीं वहाँ। अभी आई थिंक 25th ऑफ दिसंबर को वो है कपूरथला में। आई गॉट दैट ईमेल, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड इट। अभी थोड़ा टाइम जितना भी है तो अभी घर पे ही स्टे विद जाएंगे सबके फैमिली, साथ। बिकॉज यू विल मिस दीज मोमेंट्स। अगले 4 साल में ना, एग्जैक्टली भैया। you will be when you will come back after 4 years, you will see you are not in their photos, you are not in their conversations, you are not in their जो घर की थोड़ी मेमोरीज और बातें होती हैं, तेरी बातें अलग टेंजेंट पे होंगी हमेशा। इट विल बी मी, माई कोर्समेट्स, माई स्क्वाडन, बस। तो वो यू विल मिस दिस, सो मेक यूज़ ऑफ दिस टाइम। ये टाइम बहुत बेस्ट टाइम होता है रिकमेंडेशन के बाद, ज्वाइनिंग से पहले। सो सब बंदे अपनी कहानी के हीरो होते हैं इस टाइम में, तो इसलिए सो थैंक एग्जैक्टली यू। भैया, तो अभी मैं भी वही कर रहा हूँ, अभी घर पे सबके साथ टाइम बिताना, घूमना फिरना, ओके, दोस्तों से मिलना, ये सारी चीजें ही चल रही हैं अभी। great, keep it up. So thank you Ashutosh for staying with us till you know for telling our viewers about how to prepare for SSB and your sharing your SSB experience. This is the part 1 of our conversation with Ashutosh, who would soon become Cadet Ashutosh, because he has cleared the merit list and he has got AIR of 138, joining the course NDA 147 soon. So stay tuned for our second episode. In our second episode, we won't talk about how to prepare for SSB, how to prepare for written. We would talk about what happens in the SSB behind the scenes, amongst peers, amongst friends, जो मस्ती होती है. We will cover that like other videos. So stay tuned. And Ashutosh has some questions regarding NDA which he wants to ask. So let's. I am looking forward to that. Thank you very much. Jai Hind.